तो बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि ये बीजेपी का बिल है, ये मोदी का बिल है। अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है। आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है। आपको ये मानना। और आइए आपको लिए चलते हैं सीधा संसद, जहां दोनों ही सदनों में लगातार कार्यवाही चल रही है। महिला आरक्षण बिल पर लगातार ये कार्रवाई जारी है दोनों ही सदनों में। जहां स्त्री के पूजा नहीं किए गए अच्छे कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। महोदय, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है और सरकार के इस बिल के माध्यम से साबित कर दिया है कि संविधान में सम्मान लिंग भेद से वंचित नहीं किया जा सकता है। जहां महिलाओं देवी देवता के रूप में लोग पूजते हैं, काली दुर्गा के रूप में पूजते हैं, वही महिलाओं का सम्मान होता है। आज हमारे जो मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के महिला के लिए जो काम किए हैं, सोचे हैं। 27 साल से बिल पड़ा हुआ, अंदर में लटका हुआ बिल जो पटल पर रखाया है, आज पास होने वाला है। मैं इस बिल को अपने पार्टी के तरफ से समर्थन करती हूं और एनडीए के तरफ से भी समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Giving me the opportunity to speak. Thank you, sir, for speaking. You're giving me this opportunity to speak on the Constitution 128th Amendment Bill 23. Sir, I stand on behalf of the Nationalist Congress Party in full support of this bill. But there are a few points that I would like to raise as seek clarification from the government. First of all, today when we read the newspaper, sir, this morning, there were two major points which were covered in every newspaper today. I don't want to go away from the spirit of the bill, but I would like to put a few things which are really critical in the nation today. Every newspaper today has complimented all the governments who have brought this bill at various times. But there is another small piece of information on every front page of the newspaper today, which is about the incidents that happened in Canada. So I think since this is a special session and it's only for 5 days, I request the government to debate a few topics which are equally relevant as today's. One is the Canadian issue. Yes. The second is Maharashtra today, the state which I come from, sir. Waha मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, लिंगायत आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण, ये चारों आरक्षण, जैसे महिला आरक्षण का मामला बहुत ही अच्छा है, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूँ। उसी तरह come to the bill, please. Yeah, I'm just making up. This is just an introduction about आरक्षण. I'm not asking for this आरक्षण. I'm only saying कि मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम आरक्षण का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा चल रहा है आज, तो उसके लिए भी अगर the government is open, we are very happy to debate it. The other problem is even about onions, inflation, drought, बहुत सारे important issues हैं, तो अगले 2 दिन में अगर ये ले ले तो हम सब सरकार का साथ देंगे. Sir, the Honorable Amit Shah ji, when he corrected one of his speakers, he was very graceful and he said, why can't men? भाई भी कर सकता है. जी सही बात है, हर घर में ऐसे भाई नहीं होते जो बहन का सब अच्छा कल्याण देखते हैं, but that is very kind of him to say that. हर की तकदीर इतनी अच्छी नहीं होती, but फिर भी the men, I never say, I always say there are 2 wheels for a cycle to work. So men are equally important. And I would like to, about the men which has influenced our lives as women. It was B.R. Ambedkar who gave us a right to vote. It was Mahatma Phule, he made sure gave us education, and a woman like me stands here educated and qualified because of what he contributed. And the women policy which was first, I say that with extreme pride in my heart, that the women policy which was started by initiated in the Congress under the leadership of Shri Rajiv Gandhi. I was fortunate enough to say it's my father Sharad Pawar who in Maharashtra was the first state to implement Panchayat Raj 33% reservation. And it's about the girl child. I mean, Sunita Dugal ji was talking about the issues that women have. Fortunately, I was born in a very liberal home. My father and my mother, there was only one condition my father laid to my mother,
that if we have a child, whatever the gender, it can be any gender, a girl or a boy, but we are not going to have more than one child. And I was born, and my father after that did the family planning, not my mother. So I really say this, it was 50 years ago, 5 decades, when nobody talked about Beti Padhao or Beti Bachao. I come from a family, and same is applicable to my friend Kanimoli. Her mother also chose to have only one child as her parents have had. So we come from these families. You also, Rajaji also has only one child, one daughter. So we are very lucky you also have one daughter. This is a great house where we are blessed that in decades we are genuinely liberal. We are not looking for one. There are many families which come from this kind of liberal modern thinking where we are not trapped into genders. Sir, this is a big social change that we came in. I would like to bring few points to notice which I think Nishikant Dubey ji, the lead speaker, I mean, I don't get into the gender, so I'm not affected whether he led the debate from BJP or he did. But I want to ask some clarifications to BJP. I felt, these were my emotions, that BJP was taking anticipatory bail by making him lead from the front this time in the debate. The reason of the anticipatory bail was he was asking us all the questions which we have raised or which have come in newspapers or what people have said yesterday. He yesterday said, he said that, oh, ये तो ST, SC, OBC का अभी मांग करेंगे. क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? And why not? This is a great golden opportunity on 303. दे दीजिए. Nothing wrong. So why is it that we are only asking for something? बड़ा दिल करके आप ST, SC, OBC, let's make a constitutional amendment. It's a special session. Let's send a message to this nation that we are committed to ST, SC and OBC. What is wrong with that? And if they have a different view, BJP must clarify that stand. Another point, sir, which is very concerning with what he said was, he said that Geeta Mukherjee, Sushma Swaraj. He's absolutely right. I have high regard for Sushma ji in my heart. But what he mentioned, another person was Brinda Karaj ji. आपको याद होगा 2010 में Brinda Karaj ji also contributed substantially. There are a lot of women who did exceptionally well for bringing in this bill. No, I am not yielding. Please. The whole history is that Pramila Dandavate from Maharashtra, जिस राज्य से मैं आती हूँ, और मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी हिमांशु का मैं रुख करना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिमांशु। लगातार दोनों ही सदनों में कार्यवाही चल रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर, और इन सबके बीच में सोनिया गांधी का ये कहना कि राजीव गांधी का सपना पूरा हो गया, तो ऐसे में किस रूप में अभी आगे कार्रवाई आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, एक बहस शुरू हो गई है महिला आरक्षण बिल का जो प्रारूप है जिसे लोकसभा में पेश किया गया है, और सोनिया गांधी ने आरक्षण के अंदर आरक्षण के कोटे का जो सवाल उठाया है और साथ में ये भी जो मांग की है कि इस बिल को लागू करने के लिए सेंसस या डिलिमिटेशन प्रक्रिया के खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए, इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। इसको लेके जो बहस है, जो राजनीतिक बहस तेज हो गई है। चिराग पासवान जो एनडीए ग्रुप के सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने एनडीटीवी से ये कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी जो SC ST के साथ साथ OBC समुदाय के महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण के कोटे की जो मांग की गई है सोनिया गांधी की तरफ से उसका समर्थन करती है, लेकिन इस मांग के आधार पर आप एक बार फिर से बिल को टाल दें ये भी गलत होगा। उन्होंने कहा कि बिल को जैसा सरकार ने पेश किया है इसे पारित करने की प्राथमिकता हर राजनीतिक दल की होनी चाहिए, क्योंकि 1996 के बाद से ही आरक्षण के अंदर आरक्षण के कोटे का सवाल जो है वो लगातार उठता रहा है, और ये सबसे बड़ी वजह रही है कि क्यों ये बिल महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का जो एक बिल था वो पिछले 27 साल से संसद में लंबित है। और अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एकजुट होकर इसे 1/3 आरक्षण का जो प्रस्ताव है इस बिल को पारित कराने की कोशिश होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां तक समय से पहले इसे लागू करने का सवाल है, इसमें शशि थरूर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि आप देखिए, अगर सरकार चाहे तो राज्य सरकारों को ये कह सकती है, उनसे गुजारिश कर सकती है कि वो अपने अपने यहाँ विधानसभाओं में एक विशेष प्रस्ताव पारित करें और इसे तत्काल लागू करने की जो प्रक्रिया है उसकी ज़मीन तैयार की जाए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेंसस की प्रक्रिया या डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के ख़त्म होने का आप इंतज़ार करें। अगर सरकार चाहे तो इसे समय से बहुत पहले इसे लागू किया जा सकता है। इसके लिए एक ही प्रावधान करना होगा कि 543 जो सीटें हैं अभी लोकसभा में उसमें आप 1/3 प्रावधान महिलाओं के लिए कर दें। लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो बिल का प्रारूप लोकसभा में पेश किया गया है उसके साथ खड़ी है। और दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, अमित शाह
इस बहस में भाग लेंगे। 4 बजे के बाद किसी भी वक्त अमित शाह का भाषण हो सकता है। उसके बाद कानून मंत्री देर शाम इस बहस का जवाब देंगे और इसमें यही देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो दो मुख्य बातें कई विपक्षी सांसदों की तरफ से उठाई गई हैं लोकसभा में चर्चा के दौरान कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी अलग से एक कोटा होना चाहिए और दूसरी बात कि तत्काल इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 1/3 बहुमत का जो ये प्रस्ताव है या आरक्षण का जो प्रस्ताव है उसे लागू किया जा सके। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार ये जो मांग विपक्ष की तरफ से इस बहस में अब तक रखी गई है उसमें सरकार आगे क्या स्टैंड लेती है। लेकिन इतना तय है कि बिल के समर्थन में जो ज़रूरी आंकड़े हैं वो सरकार ने जुटा लिए हैं और बिल जो है लोकसभा में बहुत आसानी से पारित हो जाएगा आज देर शाम तक। जी अच्छा, इससे पहले भी हिमांशु, महिला आरक्षण बिल जो है सदन में रखा गया है और जिस 1/3 की बात कर रहे हैं तब ये कहा गया था कि इसकी जगह 1/3 की जगह लिखें कि 1/3 के जितना करीब संभव हो सके लिखा जाना चाहिए। बहरहाल क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि हिमांशु, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, मान लीजिए ये बिल पारित हो भी जाता है और पारित हो भी जाएगा, लेकिन सवाल ये क्या ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो पाएगा? देखिए, जो बहुमत है वो सरकार के साथ है। अगर आप लोकसभा के आंकड़े देखें तो 325 के आसपास सांसद एनडीए के पास हैं और कांग्रेस की तरफ से हमने सुना है सोनिया गांधी ने इस बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है और राज्यसभा में कल भी जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कहा कि हम बिल का समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही बिल के प्रारूप पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग की गई है। कल राज्यसभा में इसका इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। आज लोकसभा में सोनिया गांधी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का जो कोटा है उसका प्रावधान भी बिल के प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर इस बिल का विरोध किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया है और अगर आप बहस देखें 1996 में, 1998 में, 1999 में 3 बार ये बिल संसद में लाया गया लेकिन पारित नहीं हो सका क्योंकि सहमति नहीं थी। 2010 में राज्यसभा में हंगामे के बीच इस बिल को पारित कराया गया लेकिन उस वक्त की यूपीए सरकार के पास न राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और न ही ज़रूरी आंकड़े थे लोकसभा में इसे पारित कराने के लिए, जिसकी वजह से बिल लैप्स हो गया। तो इस बार पिछले 13 साल में भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदली है। भारतीय राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, एज ए वोटर जो है, ऐसे मतदाता महिलाओं का जो महत्व है चुनावों में वो काफ़ी बढ़ा है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो देश में 543 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ उसमें जो महिला उम्मीदवारों की संख्या थी वो 284 थी और 20 साल बाद 2019 में जब चुनाव हुआ तो महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 726 हो गई। और आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेडी ने, तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 1/3 सीटें जो थी उनके राज्य में वो महिलाओं को टिकट दिया था। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो लगातार बढ़ता रहा है और एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, एज ए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उनको नर्चर भी किया है, उनके महत्व को समझा है और जिस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है देश में पिछले 13 साल में, आज राजनीतिक जो माहौल है वो बदला है और इसी बदले हुए माहौल में ये महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा में लाया गया है। बहुत स्पष्ट बहुमत बिल के पक्ष में है और आज पीयूष गोयल जो लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, उन्होंने कुछ देर पहले राज्यसभा में कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि आज देर शाम तक ये बिल लोकसभा में पारित होगा। इसके बाद कल राज्यसभा में इस पर चर्चा करा के सरकार इसे पारित कराएगी। लेकिन एक बात जो बिल में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस बिल को लागू करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। देश में जो सेंसस की प्रक्रिया कोरोना संकट की वजह से थोड़ी डिले हुई है, पहले सेंसस की प्रक्रिया पूरी हो और जब सेंसस की प्रक्रिया पूरी होगी तो उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो संसदीय क्षेत्र हैं 543, उनकी रूपरेखा को बदलेगा, उनका स्वरूप बदलेगा सेंसस के आंकड़ों के आधार पर और इसमें वक्त लगेगा। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि 2029 के चुनावों तक ही जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ताज़ा सेंसस के आधार पर वो नई तरीके से रीड्रॉ की जा सकेंगी, उनका स्वरूप बदला जा सकेगा और इसलिए 2029 के पहले जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत 1/3 आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो 2029 में ही लागू होगा। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि 2024 के चुनावों तक
जो ये प्रक्रिया है 1/3 आरक्षण देने का, उसे जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाए। शशि थरूर ने एनडीटीवी से ये कहा है कि अगर आप चाहें तो 543 जो सीटें अभी हैं लोकसभा में, उसी में आप 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दें और सभी राज्य सरकारों से कहें कि वो अपने अपनी विधानसभाओं में विशेष प्रस्ताव पारित करके इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करें। ये संभव है। ये मांग, ये सुझाव कांग्रेस की तरफ से सरकार के सामने रखी गई है और जैसा मैंने पहले कहा, अमित शाह 4 बजे के बाद किसी भी वक्त इस बहस में हस्तक्षेप कर सकते हैं। कानून मंत्री देर शाम तक जवाब देंगे इस बहस का। ये दोनों जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो विपक्ष की इस मांग पर आगे क्या कहते हैं, मुझे लगता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। 1996, 1998, 1998, फिर 1998, फिर 1998, 2000, 2002, 3, 8 और 2010 में ये बिल लाया गया, लेकिन एक सदन में पास हो गया लेकिन दूसरे में अटक गया। क्या ये तस्वीर इस साल 2023 में बनती हुई नजर आ सकती है? इसको लेकर क्या कहेंगे? हिमांशु जी हिमांशु, इससे पहले भी ये बिल लाया गया है, दोनों ही सदनों में बिल लाया गया है, एक सदन में पास हुआ, दूसरे में अटक गया। 2023 की बात कर ली जाए तो क्या ये तस्वीर आपको लगता है कि इस 2023 में भी बनती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि लोकसभा में तो बिल यहाँ पारित हो जाएगा, लेकिन जब राज्यसभा का रुख किया जाएगा तो वहां पर क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जो संकेत हैं विपक्षी दलों की तरफ से, उसमें किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हम अगर इस बिल के प्रारूप में बदलाव नहीं किया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे या इसे रोकने की कोशिश करेंगे। ये बात किसी भी राजनीतिक दल ने, विपक्षी दल ने नहीं कही है। एक सुझाव जरूर रखा गया है और जैसा मैंने पहले कहा, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जब प्रधानमंत्री ने अपील की थी विपक्षी दलों से राज्यसभा में कि आप सब एकजुट होकर सर्वसहमति से इस बिल को पारित कराने में सरकार की मदद करें, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि हम बिल का समर्थन करते हैं, हमने ही ये बिल 2010 में इसी सदन में पारित कराया था। लेकिन साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल भी उठाया था कि अभी जो भारतीय राजनीति है उसमें जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत कमजोर है और कमजोर कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाता है। ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया था। उसके बाद बहुत तीखी बहस मल्लिकार्जुन खड़गे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच भी हुई थी। तो इस बिल के प्रारूप में बदलाव जरूरी है। मैं आपका रुख करूंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस बीच आपको ले चलते हैं ठीक संसद, यहाँ पर दस्कौर मीणा क्या कुछ कह रही है कार्रवाई के दौरान, वो आप सुनिए। मैं ये कहूं कि जब रथ का पहिया, दोनों पहिए बराबर हैं, दोनों की सक्षमता से रथ चलेगा और इस भाव को मद्देनजर रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कल्पना साकार की और उस साकार करने के साथ मैं याद दिलाना चाहूंगी उनको कि भाई की कलाई पे जब राखी बांधी जाती है तो केवल वो राखी स्वयं की रक्षा की नहीं, बल्कि वो संपूर्ण समाज की रक्षा और अपने भाई की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी की सक्षमता पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। नारी सक्षम है, इसके अनेक उदाहरण आज हमारी वर्तमान लोकसभा में, चाहे रक्षा मंत्रालय संभालना हो, चाहे वित्त मंत्रालय संभालना हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संभालना हो, सक्षम नारियां, सक्षम महिलाएं, सक्षम हमारी मंत्री बहनें इस काम को संभाल रही हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि हमारी नारी सक्षम नहीं, वो सक्षम है, स्वस्थ है, सार्थक है, उन्नतिशील है और भारतीय संस्कृति में पली बड़ी है। भारतीय संस्कृति में पली बड़ी नारी भारत के वर्चस्व को और भारत की परंपराओं को समझती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बिल में जिस तरह से ये सभी जो ये तीनों जगह, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के कुछ स्थानों के यथासाक्य 1/3 बहनों को आरक्षण देने का जो प्रावधान इस बिल में किया गया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान ने जो सुरक्षा दी है वो सुरक्षा व दस्तूर बनी रहे। अनुसूचित जनजाति की मैं स्वयं हूँ और मैं ये कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल वोट बैंक नहीं समझा। जब 13वीं लोकसभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्रालय का दायित्व भी मुझे दिया, उस समय भी मुझे ये अनुभव था कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सर्वोच्च उन्नति और सम्मान के प्रति काफ़ी चिंतित है और उस चिंता को
आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सफल करके दिखाया है। अभी पश्चिम बंगाल से बहन बोल रही थी और वो बोल रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपके राज्य ने हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू ही नहीं किया, दिल्ली ने लागू ही नहीं किया, उड़ीसा ने लागू ही नहीं किया, और भारत सरकार की महिला समृद्धि योजनाओं को लागू करने में इतने वो पीछे क्यों हैं? यदि वो महिलाओं की प्रगति को देखना चाहते हैं तो उस प्रगति में महिलाओं से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं को अक्सर से लागू करना चाहिए था। मैं एक बात और आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहूँगी कि 75 वर्ष में 65 साल जिस पार्टी ने राज किया, उस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं की प्रगति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की उन्नति के लिए कोई कल्पना करे। और उस समय जब ये बात चल रही थी तो दिनकर जी ने भी ये बात लिखी थी कि अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। और यही नहीं, सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह बंधनी हुई बता किस घर में। एक ही घर में वो विवाह बंधनी हो गई, और विवाह बंधनी होने से, वो आभा बंधनी होने से भारत का समुचित विकास, भारत की नारी शक्ति की उपेक्षा जिस तरह से की गई और जिस तरह से उसे कमजोर समझा, धन्यवाद। देखिए